Hello dear students. Now our today's topic is ultrastructure of chloroplast, a most important topic for your exam और एकदम इजी टॉपिक है. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है तो टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा टू सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ एमसीक्यूज. और पूरा चैप्टर जो है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझ लो तो पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये जो टॉपिक है अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यू शुड नो वेयर इट इज प्रेजेंट. सबसे पहले तो आपको मालूम रहना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद है. ठीक है. द स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डन बाय एंटोनी वॉन लीवनहुक. किसने स्टडी किया है इसकी? एंटोनी वॉन लीवनहुक ने इसे स्टडी किया है. एंड द ग्रीन प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. जितने भी ग्रीन प्लास्टिड्स हैं उसी को क्लोरोप्लास्ट बोला गया है. नाउ वेयर दे आर लोकेटेड? फॉर दैट यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. Suppose this is leaf of any green plant. This is leaf of any green plant having green lamina, expanded lamina. In this expanded lamina, midrib is there, and from that midrib, lateral vein will form. और उस midrib के बाद में क्या form हो रही है? Lateral vein. ठीक है? Inside this green lamina, large number of cells are present. इसी lamina के अंदर में क्या है? बहुत सारे green cells हैं. Inside this green lamina, green cells are there. These special green cells, they are compactly arranged and they cover the whole area of lamina. और पूरा जो lamina का एरिया है वो पूरा इसी green cells ने क्या किया? कवर किया है. These green cells are now called as mesophyll cells. ये green cells को क्या बोला गया है? mesophyll cells. Is it clear? Now when you take a section of this leaf, when you take a transfer section of leaf, you will notice that this green cell, this leaf is prepared by single layered cover from upper side and single layered cover from lower side. This one layered cover is a protective cover. ठीक है? This upper single layered cover is called as upper epidermis. Upper epidermis. And this single lower layer is called as lower epidermis. आपको मैं बता रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन कहां है, where they are located and how they work. When you observe this upper epidermis, it has single cover which is protective in nature, and this single layered gelatinous cover on the surface of upper epidermis is called as cuticle, which is covered only from upper side. Upper epidermis is a continuous layer, smooth layer, but when you observe lower epidermis, small pores are there. These small pores are called as stomata. These small pores are called as stomata, which are helpful for interchange and exchange of gases. And with the help of this stomata, the water molecule in form of vapor thrown out. You call that process as transpiration. उस समय उस process को क्या बोला जाएगा? Transpiration. Now below the upper epidermis, columnar cells are present. These are all columnar cells which are present below upper epidermis. These are all elongated columnar cells, tall cells. They are compactly arranged, and these columnar cells are called as palisade cells. Palisade cell, a type of mesophyll cell. And when you observe the lower epidermis, inside the lower epidermis, spongy cells are there. और इस lower epidermis के अंदर में spongy cells हैं. Spongy cells are those cells in which in between two cells there is a gap. A big intercellular space is there in between two cells. That's why these cells are called as spongy cells. These are called spongy tissues. Spongy cells, which are again a type of mesophyll cell. इसका मतलब mesophyll cell ही distinguish होता है दो टाइप के सेल में. You call one cell as palisade cell and you call one cell as spongy cell. These two special cells are present inside leaf, inside a green leaf, and you call these two cells as a type of mesophyll cell. And in the middle there is presence of a vascular bundle. और इसी के middle में क्या मौजूद है? Vascular bundle available है. This is vascular bundle which carry xylem as well as phloem. This is vascular bundle through which
a water conducting tissue and food conducting tissue which you call xylem and phloem are available. Is it clear? And complete area और बाकी का जो एरिया है वो सब पूरा वस्कुलर बंडल को सराउंड अप किया हुआ है. Complete space is surrounded by these spongy cells and this spongy cell carry a cell organelle और इसी spongy cell में पेरीफेरी में बाउंड्री में आप देखिए इंक्लूडिंग दिस पेलिसेड सेल इन द पेरीफेरी ऑफ एवरी पेलिसेड सेल a special cell organelle is present and you call that special cell organelle as chloroplast और इसी सेल ऑर्गेनेल को क्या बोला गया है? क्लोरोप्लास्ट, जो अपने को आज डिस्कस करना है. समझ में आपकी पोजीशन कैसी है? लीफ है हर ग्रीन प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके थ्रू प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है. और हर ग्रीन प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं यू कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज ऑटोट्रॉप्स, जो लास्ट पीरियड में अपने डिस्कस किए. दो टाइप के ऑटोट्रॉप्स थे, ठीक है. नाउ ऐसे ग्रीन प्लांट जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं उस टर्म को मैंने बोले थे फोटोसिंथेसिस. इसका मतलब हर ग्रीन लीफ में मेसोफिल सेल्स है. उस मेसोफिल सेल्स में डिस्टिंग्विश किए मैंने दो टाइप के स्पेशल सेल्स हैं यहाँ पर. यू कॉल वन सेल एज पेलिसेड सेल व्हिच कैरी क्लोरोप्लास्ट एंड वन सेल एज स्पॉन्जी सेल व्हिच आल्सो कैरी क्लोरोप्लास्ट. तो यही क्लोरोप्लास्ट की स्टडी जो है आज अपने को करना है. एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट. और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है फोटोसिंथेसिस का. मींस दिस क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स टू प्रिपेयर फूड. अब फूड बनाने के लिए अपने डिस्कस किए थे एवरी ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट प्रिपरेशन ऑफ फूड व्हिच यू कॉल कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तब कहीं ग्रीन प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बनाया था, ग्लूकोज बनाया था. along with this preparation of glucose some amount of water molecule is released, ठीक है. You call that process as transpiration and oxygen gas is released as a byproduct. इसका मतलब प्लांट ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज किया है. और इसको प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी. और रॉ मटेरियल क्या क्या लग रहा है, क्या क्या मिला प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मॉलिक्यूल मिला. नाउ वन क्वेश्चन विल अराइज कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फूड मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है. अब वो क्लोरोप्लास्ट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहां से अवेलेबल होगा? फ्रॉम वेयर? एवरी क्लोरोप्लास्ट which are present in green cells of a plant body, green part of a plant body, from where these chloroplasts take CO2 and water. The CO2 is taken by stomata. CO2 कहां से एंटर होगा? स्टोमेटा से. Is it clear? अब वाटर मॉलिक्यूल कहां से मिल रहा है प्लांट को? वाटर मॉलिक्यूल प्लांट को मिल रहा है बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट्स. और रूट्स के थ्रू वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ, मिनरल जो एब्जॉर्ब हुआ, वो नेचुरली किसके थ्रू ट्रैवल होगा? वो सब ट्रैवल होगा जाइलम एलिमेंट के थ्रू. और जाइलम एलिमेंट के थ्रू, वेन्स के थ्रू हर क्लोरोप्लास्ट को वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. तब कहीं हर क्लोरोप्लास्ट जो है अपना कार्बोहाइड्रेट जो है बनाने में हेल्प करेगा. सो दैट यू कॉल दिस क्लोरोप्लास्ट एज ए किचन. इसलिए क्लोरोप्लास्ट को अपन क्या बोल सकते हैं? एक किचन बोल सकते हैं, रसोई घर बोल सकते हैं. जैसे हर घरों में किचन रहता है, हर घरों में रसोई घर रहता है जहां पर सिर्फ भोजन पकता है. सेम कहानी जो है प्लांट में भी आप लीफ को, आप क्लोरोप्लास्ट को एक किचन के रूप में संबोधित कर सकते हो. इज इट क्लियर? नाउ आवर टॉपिक इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट को अपन बोले इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट को ही अपन बोले इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जो कहां मौजूद है? पेलिसेड सेल में मौजूद है और स्पॉन्जी सेल्स में मौजूद है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज इट इज ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट इज माइक्रोस्कोपिक in nature. It is always polymorphic. It is always polymorphic. Next characteristic feature is chloroplast is always polymorphic in nature. So what do you mean by polymorphic in nature? Polymorphic nature means the characteristic feature of chloroplast is it has different shape, it has different size. ठीक है, depends on plant कि plant कौन सा है, aerial plant है, aquatic plant है, ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करता है, उसके हिसाब से क्लोरोप्लास्ट के भी शेप जो है चेंज होते हैं. डिस्क शेप का भी है, ओवल शेप का भी है, कप शेप का भी है, राउंडेड शेप का भी है, फिलामेंटस भी है, स्पाइरल शेप का भी है.
Each and every shapes are available in different types of plant. That's why chloroplasts are called as they are always polymorphic in nature. ठीक है? They are available in green cells. हर green cells में है, and that green cells carry at least 20 to 100 chloroplasts per cell. हर green cell में कम से कम 20 से 100 chloroplasts जो है they are present. 20 to 100 chloroplasts are present in every green cell, and we call that green cell as mesophyll cell, and that mesophyll cell are spongy cell as well as palisade cell. तो हर palisade cell में, हर spongy cell में ऐसे 20 से 100 chloroplasts रहेंगे. Is it clear? Now come to a diagram of chloroplast. Suppose a general structure of chloroplast is always disc or oval shaped body. So here we will observe a chloroplast you have to draw, which is a disc or oval shaped body, and this disc or oval shaped body is bounded by two membranes. और एक chloroplast जो है कैसे बाउंड अप किया हुआ है? दो मेम्ब्रेन से बाउंड अप किया हुआ है. You call these two membrane as unit membrane. ठीक है? और you may call chloroplast envelope. ये क्या हो गया? chloroplast का envelope हो गया है. And you call this chloroplast envelope as peristromium. और इसी envelope को क्या नाम दिया गया है? peristromium. This peristromium is called chloroplast envelope. ये chloroplast का क्या हो गया? envelope हो गया है. Which get distinguished into two membrane. One is outer membrane and one is inner membrane. जो दो membrane में distinguish हुआ है, एक outer membrane है और एक inner membrane है. Which get distinguished into two membrane. You call it as outer membrane and inner membrane. Which are unit membrane, जो क्या एक प्रकार का unit membrane है. The structure when you observe these two membrane, outer and inner, or you may call peristromium, which you call chloroplast envelope, it is always smooth and continuous. ये दोनों लेयर जो है वो एकदम स्मूथ है और कंटिन्यूअस है. ठीक है? एंड दे आर लिपोप्रोटीनेशियस. और ये दोनों लेयर कैसी हैं? लिपोप्रोटीनेशियस है. These two layers they are lipoproteinaceous. Means they are made up of lipids as well as protein. ये दोनों लेयर जो है लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है. That's why they are always lipoproteinaceous in nature. इतना समझ गया? Now when you observe these two membrane, there is a little space, there is a little gap. This little space is called as periplastidial space. ये जो space है उस space को बोला गया है periplastidial space. This space is called as periplastidial space, which is present in between outer and inner membrane. So that a small area is there. You call this small area in between outer and inner membrane called as outer chamber. इसलिए दो स्पेस के बीच में एक स्पेस आ गई है, दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आ गई है. उस स्पेस को आप आउटर चेंबर बोल सकते हो. ठीक है? और वो आउटर चेंबर या उसको पेरिप्लास्टिडियल जो स्पेस है, इट कंटेन ए फ्लूइड. इसमें क्या है? एक फ्लूइड है, एक केमिकल है जो एक वाटरी सब्सटेंस है. जो क्या है? एक वाटरी सब्सटेंस है. एंड यू कॉल दैट फ्लूइड एज पेरिप्लास्टिडियल फ्लूइड. एंड यू कॉल दैट फ्लूइड एज पेरिप्लास्टिडियल फ्लूइड. One fluid is there and you call that fluid as periplastidial fluid. Periplastidial fluid. Now we have discussed regarding this peristromium. अब अभी मैंने डिस्कस किया पूरा पेरिस्ट्रोमियम के बारे में, जिसको अपन ने क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप बोले हैं. जो डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, वो स्मूथ है, वो कंटिन्यूअस है, वो लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन कहलाता है. ठीक है? एक और दो मेम्ब्रेन के कारण एक आउटर चेंबर बन गया है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर में एक बिग स्पेस बन गया है. यू कॉल दिस बिग स्पेस एज इनर चेंबर. अंदर में एक बिग स्पेस बन गई है. यू कॉल दैट बिग स्पेस एज इनर चेंबर. इज इट क्लियर? अब आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है, जो स्पेस है, उस स्पेस को अपन ने पेरिप्लास्टिडियल स्पेस बोले. उस पेरिप्लास्टिडियल स्पेस के अंदर में एक वाटरी फ्लूइड भरा हुआ है. उस वाटरी फ्लूइड को अपन ने पेरिप्लास्टिडियल फ्लूइड बोले. इज इट क्लियर? अब क्या रोल है इसका प्लांट में? लीफ के अंदर में मेसोफिल सेल में जो डबल लेयर्ड एनवेलप करके जो मौजूद है पेरिस्टोमियम, इसका वर्क क्या है? इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल. ये अलाउ करता है मूवमेंट, मटेरियल की मूवमेंट को. ठीक है? मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करने के लिए इन एंड आउट करवाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, जिसके थ्रू ये दोनों लेयर प्रोटेक्टिव भी है.
दोनों लेयर प्रोटेक्टिव भी है और दोनों लेयर इन एंड आउट कराएगी मटेरियल को, जिसके थ्रू ये जो कंपोनेंट बन रहे हैं, ठीक है, ये जो यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, रॉ मटेरियल जो प्लांट को लग रहा है क्लोरोप्लास्ट को फूड बनाने के लिए, और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसमें से भी जो रॉ मॉलिक्यूल जो निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा है, उसको भी इन एंड आउट करने के लिए ये दोनों एनवेलप जो है क्लोरोप्लास्ट की हेल्प करती है। इज इट क्लियर? दिस इज डिटेल रिगार्डिंग पेरिस्टोमियम। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यू कॉल इट एज स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। यू कॉल दैट पार्ट एज स्ट्रोमा। डिटेल्स रिगार्डिंग स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को जनरली बोला गया है इट इज अ ग्राउंड टिश्यू। स्ट्रोमा इज जनरली कॉल्ड एज इट्स अ ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मींस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड इंटरनली इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? इनर चेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो इनर चेंबर है, इनर चेंबर के अंदर में वाटरी फ्लूइड है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, एंड यू कॉल दिस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड एज स्ट्रोमा। इस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड को क्या बोला गया है? स्ट्रोमा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रोमा? स्ट्रोमा को ग्राउंड टिश्यू बोला गया है और इसी ग्राउंड टिश्यू में ग्रेना मौजूद रहता है। When you discuss regarding stroma, the characteristic feature of stroma is, the first characteristic feature of stroma is it is always colorless and transparent. Stroma जो है ये हमेशा colorless रहेगा, colorless fluid है, it is always transparent in nature, ठीक है? The characteristic feature of stroma, a ground tissue fluid, it is always colorless, it is always transparent, and it is proteinaceous in nature. It is also proteinaceous in nature. It is also proteinaceous in nature. It is always hydrophilic in nature and a type of watery fluid. और एक प्रकार का क्या है ये? Watery fluid है. And complete area of inner chamber is filled by this substance called stroma. This is the characteristic feature. Along with this component, some special components are present in stroma. That special components are type of enzymes which are helpful to complete dark reaction. इसमें कुछ enzymes भी है जो dark reaction को complete करने में help करेगा. Here we will observe some special enzymes are there which are helpful to complete dark reaction. ठीक है? Including some circular DNA is present. क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कुछ circular DNA भी है. क्लोरोप्लास्ट DNA भी कहा जाता है. Some ribosomes are there. क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कुछ राइबोसोम्स भी है. Some ribosomes are there. Some RNA are available which are single stranded. ठीक है? एंजाइम्स है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है. All these components which are present in stroma, they are helpful to complete dark reaction. वो क्या में हेल्प करते हैं? डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं. और क्लोरोप्लास्ट का खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहने के कारण दिस क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज plastidome. This DNA of chloroplast, the characteristic feature of DNA of chloroplast is it is always naked, it is always closed type, it is always circular in nature and they are highly folded. और हमेशा क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है? DNA जो है बहुत ज्यादा फोल्ड किया हुआ है. That's why the chloroplast of DNA is also called as plastidome. It is also called as plastidome. The chloroplast of DNA is also called as plastidome. Now what do you mean by the term plastidome? ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में खुद का डीएनए है. खुद का डीएनए रहने के कारण क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिडोम इसलिए बोला गया है. आप मालूम है हर सेल में माइटोसिस होता है. So that one cell divide and redivide to form two daughter cell. उसी प्रकार ये क्लोरोप्लास्ट भी जब डिवाइड होगा, क्लोरोप्लास्ट भी जब मल्टीप्लाई होगा, उसके डीएनए के द्वारा, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है डीएनए का यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट खुद इंडिपेंडेंट अपना सेल ऑर्गेनिल बना लेगा. इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बोला गया इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट, इट इज सेल्फ ऑटोनॉमस यूनिट, इट इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट, सेल ऑर्गेनिल. एक प्रकार का सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनिल है ये. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है? प्लास्टिडोम. एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया मैंने आपको पेरिस्टोमियम, जो डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन, जो स्मूथ मेम्ब्रेन था, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन था, ठीक है, उसको अपन ने पेरिस्टोमियम बोले थे. इतना क्लियर हो गया? अब आइए
अंदर में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में एक और मटेरियल मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के, एंड यू कॉल दैट मटेरियल एज ग्रेना। ग्रेना। Now come to details regarding a grana. When you observe the structure of grana, they are very small, dark green colored. The characteristic feature of grana is they are very small, dark green colored and tube-like projections. These are small, dark green colored tube-like projections, elongated tube-like projections, or you may call cylindrical, long, elongated, and just like bunch of coin. और उसका अपीयरेंस जो है आपको कैसा दिखेगा? बंच ऑफ कॉइन जैसा दिखेगा। तो दिस लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विच अपीयर्स लाइक बंच ऑफ कॉइन, ऐसा महसूस होगा आपको जैसे चवन्नी अठन्नी रखी गई है उसके ऊपर एक। तो जो बंच ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है दे आर मेनी नंबर एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज ग्रेना, और इसी को क्या बोला गया है? ग्रेना। इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट में आप देखिए दो मेजर पार्ट्स हो गए क्लोरोप्लास्ट के, एक पार्ट को बोला गया स्ट्रोमा और एक पार्ट को बोला गया ग्रेना। ग्रेना जो है काफी स्मॉल है, डार्क ग्रीन कलर के है, सिलिंड्रिकल है, ग्रैनुलर सैक्स है, एंड दैट ग्रैनुलर सैक्स दे आर जस्ट लाइक कॉइन्स, bunch of coin, and that bunch of coin like structure is called as granum, or you may call grana. There are 40 to 60 grana per chloroplast. हर क्लोरोप्लास्ट में से 40 से 60 ग्राना जो है मौजूद रहते हैं, ठीक है। एंड सिंगल ग्राना विल कैरी एटलीस्ट 2 to 50 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, 2 से 50 डिस्क लाइक बॉडीज जो है वो अरेंज की हुई है। इसका मतलब 2 से 2 to 50 कॉइन्स, अगर 50 पैसा, ठीक है, 1 rupee coin, they are arranged one below the other. They are how much? 2 to 50 number. 2 से 50 कॉइन्स अगर एक के ऊपर अगर प्लेस अप किया जाए तो उसी को क्या बोला जाएगा? ग्राना, और यू मे कॉल इट ग्रानम। When you observe this granum, एक फ्लैट मेम्ब्रेनस पार्ट बनाया है इसने ग्रानम में। ग्रानम में क्या बनाया? एक प्रकार का फ्लैट मेम्ब्रेनस पार्ट बनाया है, और उस फ्लैट मेम्ब्रेनस पार्ट को अगर इलोंगेट किया जाए, ठीक है, सो दैट एवरी ग्राना दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, क्योंकि हर ग्राना जो आपस में क्या हो गया है? इंटरकनेक्टेड हो गया है। तो जो इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन है ग्राना की, उसी इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन को बोला गया है इंटरग्राना। ये जो इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन है, इस इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन को बोला गया है इंटरग्राना। दिस इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटरग्राना, और यू मे कॉल इंटरग्राना लैमेली। यू मे कॉल इंटरग्राना लैमेली। Few more words are there if you follow NCERT. It is called intergrana lamella. You may call it as stroma lamella. You may call Frick canal. इसी को और क्या बोल सकते हो आप? Frick canal. Different words are there. Now when you observe this grana, ठीक है, सिंगल ग्राना की अगर बात की जाए, suppose I am drawing this diagram here. ये एक ग्राना अपन ने डिस्कस किए, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पर डिस्कस किए। इन दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर वन स्पेस इज देयर, दैट स्पेस इज कॉल्ड लुमेन। इसका मतलब हर ग्राना का एक एक सिंगल जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड। एक एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? थैलेकॉइड। तो अपन ने एक थैलेकॉइड जो है यहां पर ड्रॉ किया अपन ने। हियर वी हैव ड्रॉन ए सिंगल थैलेकॉइड। एक जो सिंगल थैलेकॉइड है वो ही ग्राना बना रहा है, बंच में है, और हर थैलेकॉइड में एक स्पेस है, एंड यू कॉल दैट स्पेस एज लुमेन। इज इट क्लियर? दिस इज वन थैलेकॉइड, on the surface of it second thylakoid is there, so that a partition wall is there, you call that partition wall as septa। हर थैलेकॉइड में एक पार्टीशन वॉल है, उस पार्टीशन वॉल को क्या बोला जाएगा? सेप्टा। then there is a space, that space is called lumen, and on this space a semi-spherical particles are arranged, और इसी स्पेस में क्या मौजूद है? semi-spherical particles है। Here you will observe semi-spherical particles are there. These semi-spherical particles are called as quantasome. ये semi-spherical particles को क्या नाम दिया गया है? Quantasome. Quantasome. These semi-spherical particles are called as quantasome. ठीक है? Which are many number. At least 200 to 250 quantasomes are there, and in this quantasome a special chlorophyll pigments are present, और इसी क्वांटासोम में स्पेशल क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, और वही क्लोरोफिल पिगमेंट जो है
लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट्स हैं। सोलर एनर्जी का ट्रैपिंग जो है ये इन्हीं पिगमेंट के द्वारा होता है, एंड these pigments are special. These are called as chlorophyll pigments which are of different type, जो अलग अलग टाइप के रहते हैं। डिपेंड करता है प्लांट का कलर, लीफ का कलर, और प्लांट को कौन सी इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब करना है। इट में बी ऑफ कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अलग अलग टाइप के पिगमेंट जो है इसी क्वांटासोम के अंदर में लोकेटेड है, विच आर मेनी नंबर, विच आर मेनी इन नंबर। इतना क्लियर हो गया? नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व इट, इट कंटेन्स different types of photosynthetic pigment molecule which are up to 250 नंबर, जो कम से कम 250 रहते हैं, जिसके थ्रू लाइट का जो फिक्सेशन है, प्लांट के ऊपर जो लाइट पड़ रही थी और लाइट को फिक्सेशन करेगा, लाइट का फिक्सेशन जो है इन्हीं ग्रेना पार्ट में होता है। ये ग्रेना पार्ट को जो है लाइट को, सोलर एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। सोलर एनर्जी को लाइट का ट्रैपिंग जो है इसी ग्रेना के द्वारा हो रहा है। दैट्स व्हाई इन ग्रेना ए लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसे ग्रेना में जो रिएक्शन होंगे उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल फेज। यहां पर लाइट रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज़ इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। सिमिलरली ड्यूरिंग नाइट टाइम मींस ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट सिंथेसाइज ATP, adenosine triphosphate, as well as NADPH2, NADPH, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये भी प्लांट ने डे टाइम में प्रिपेयर किया है, क्योंकि सोलर एनर्जी का कन्वर्शन ये केमिकल एनर्जी में कर रहा है। सोलर एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में कर रहा है, इसलिए अपन बोले थे डेफिनेशन में, इट्स एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोले थे अपन ने, एंडरगोनिक प्रोसेस। इट्स अ लाइट ट्रैपिंग प्रोसेस, जिसमें प्लांट ने डे टाइम में दो एनर्जी का सिंथेसिस किया है, ATP का भी और NADPH2 का भी सिंथेसिस किया है। अब नाइट टाइम में प्लांट कैसे रिएक्शन करेगा? नाइट टाइम में प्लांट के पास में एंजाइम्स है, नाइट टाइम में प्लांट के पास राइबोसोम्स है, DNA है, और ये एनर्जी जो ऑलरेडी प्लांट ने डे टाइम में प्रिपेयर किया है, ऑल दीज एनर्जीज आर यूज्ड इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के पास जो नेचर से प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्सेशन प्लांट ने नाइट में किया है। और नाइट में जो रिएक्शंस होते हैं, दैट रिएक्शंस टेक प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट। दैट्स व्हाई इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसलिए स्ट्रोमा में जो रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डार्क रिएक्शंस। और उन्हें कॉल्ड द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, एंड एवरी डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और हर डार्क रिएक्शन जो है प्लांट के कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। और डे टाइम में जो रिएक्शंस हो रहे हैं प्लांट में, वो कहां होंगे, ग्रेना में होंगे। दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें अपन डिटेल्स डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन की। पहले कैसे प्लांट ने ATP बनाया, कैसे प्लांट ने NADPH2 बनाया, ठीक है। और वो जो रिएक्शंस हो रही है डे टाइम में, उस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो दो टाइप की रहती है। यू कॉल्ड वन रिएक्शन एज साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एंड नेम ऑफ वन रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो दोनों रिएक्शन जो है अपने को ग्रेना में पढ़ना है। इसका मतलब ग्रेना में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन को अपन लाइट रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शंस डे टाइम में होंगे, और डे टाइम में जो रिएक्शंस होंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होंगे। इज इट क्लियर? तो डे टाइम में कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे यहाँ पर एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है, वी शुड डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।